So I'm telling you how to divide one polynomial by another polynomial, and this is known as a concept of long division. This is a concept of a long division, right? Long division बोलते हैं और कैसे करते हैं? Let me give you one example, and I am taking this example from class 10th book. ठीक है? You have to divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. ठीक है, ये करना है आप लोगों को. सो आप जो डिवाइजर है उसको आप जैसे नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हो, सिमिलरली आप डिवाइजर को यू विल पुट इन दिस फ्रेम and dividend will be here. Now what you have to do, the main thing is the main rule of dividing, that the first term and the first term must be same. The first term and first term must be same. इनका सेम होना मस्ट है. तो अगर सेम होंगी then you will when you will subtract, because you know हम डिवाइडिंग में सब्ट्रैक्ट करते हैं. सपोज आई हैव टू डिवाइड 2 7 5 1 2 0 को 5 से, so I will multiply 5 by 5. I will choose a number equal or less than 27, and then I will subtract and then I'll get 2. I'll carry another number and then I will multiply by the number to get equal or less than 25. Similarly it goes on. Similarly I will choose a number here which is same as the first term, then I will subtract, this will cancel. Again this must be same, subtract. Again this must be same, subtract. तो ये आपका एक प्रोसेस चलेगा. मीन्स एक बार वो वाला करोगे, ये 2x स्क्वायर वाला. मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा रिमाइंडर 3 आ गया. यही तो कर रही हूँ बेटा. हाँ, रिमाइंडर 3 आ गया तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है. मैंने कब बोला मैंने कब बोला कि ये इसका फैक्टर है? मैंने कब बोला कि ये इसको पूरा डिवाइड करेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है. आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको कुछ भी आ सकता है. इट इज नॉट अ हार्ड फास्ट रूल ना कि यू विल गेट रिमाइंडर 0 एवरी टाइम. You will get 0 only when the given divisor is a factor. Very good. Your answer is perfectly correct. Your remainder is 3. Now, there are two techniques of finding the remainder. One is the remainder theorem and other is this division, long division. Now, I do not have any clue. I am totally clueless why this remainder theorem is deleted from our course, from our syllabus. I am clueless because it is a very good method. It is a shortcut to find the remainder without long division. No doubt, we must learn long division also for future purpose. But remainder theorem is a very shortcut method, but that is deleted from our syllabus. Some schools are still using, some schools are not using. Like Suhani school is not using, so she will not revise it. If your school is using, you will revise it. Okay. Now you have to think a number such that by multiplying x with that number, you will get 2x square. Now x को आप बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले, बिकॉज फर्स्ट नंबर मस्ट बी सेम. तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 2x स्क्वायर आएगा? कौन बताएगा? 2x से. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. 2x से कर दिया 2x स्क्वायर. लेकिन पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है मुझे. x को भी करना है और 2 को भी करना है. तो मैं इस 2 को भी 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ. तो 2 2 जा 4. 4x minus. Very good. This have to cancel. Now 3x minus 4x is equal to minus x. You will carry forward 1. Okay. Now you need minus x. Minus x means you will multiply it by minus 1. You will multiply it by minus 1. So this is minus x, and 2 into minus 1 will be minus 2. 2 into minus 1 will be minus 2, because we have to multiply the whole divisor by this. And ये मैंने चूज कैसे किया कि ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए.
एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स आ जाए, तो माइनस से 1 से किया, ठीक है। सो प्लस एंड प्लस कैंसिल, 2 + 1 3, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू, मेरा भी 3 आया है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। सो सिंपल, सो इजी, बहुत सिंपल और बहुत इजी होती है। अब इसको ही मैं थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेके करा देती हूँ, ताकि आपको लगे कि भैया रूल्स कोई मतलब चेंज नहीं करने, बिल्कुल सेम है। आपको बड़े एक्सप्रेशन, अभी देखो आपका 9th में क्या है पता है, 9th में यू आर बाउंडेड, यू आर स्ट्रिक्ट टू द लीनियर डिवाइजर। 9th क्लास में आपका जो ये डिवाइजर है ये हमेशा लीनियर होगा, हमेशा डिग्री 1 वाला होगा, बट ऐसा 10th में नहीं होगा। 10th क्लास में यू विल हैव -x³ प्लस 3x² -3x + 5, दिस इज क्यूबिक। मैंने जान के ये माइनस वाला चूज किया है, एंड आई एम डिवाइडिंग दिस विद अ क्वाड्रेटिक से -x² + x - 1. Now I have to choose a number. If I will multiply -x² by that number, I will get -x³। नंबर बताओ। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ। -x को। प्लस एक्स हाँ प्लस x, मतलब x माइनस ही पॉजिटिव एक्स वेरी माइनस वेरी में वो पॉजिटिव हो वेरी जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्लस एक्स से करेंगे। अब वी विल मल्टीप्लाई ईच एक्सप्रेशन बाय प्लस एक्स, वी विल मल्टीप्लाई ईच एक्सप्रेशन बाय प्लस एक्स, मतलब ईच टर्म वो हियर। तो x² बन गया ना। बिल्कुल बन गया जी, x² को आप x² के नीचे लिख दो, वो माइनस माइनस एक्स और वो माइनस -x। 1 माइनस एक्स बनेगा, बिल्कुल ठीक है जी। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2 will एक्स be very good, 2x² 2x² प्लस माइनस माइनस प्लस 4x माइनस टू प्लस एक्स 4 क्यों बेटा, -2 2x, बेटा। सॉरी हाँ हाँ। माइनस, वेरी गुड। नाउ थिंक अ नंबर, लक्षा प्रियल आप भी पार्टिसिपेट करो बेटा। थिंक अ नंबर मैम बाय 3x विच + x है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। -3 है ना बेटा। हाँ -3x + x तो 2x -2x ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई -x² विद अ नंबर, गेट दिस नंबर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस टू -2 -2 बेटा, माइनस माइनस तो प्लस आएगा। अच्छा हाँ सॉरी -2 फिर प्लस एक्स को -2 से करोगे तो -2x आएगा, फिर -1 को -2 से करोगे तो +2 आएगा। प्लस 2 साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, सेम कैंसिल एंड 5 - 2 3, ठीक है। आ गए 3 दो आंसर, आ गए। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक हाँ बात बताती हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के, मजा मजा आ जाएगा। देखो, जो रिमाइंडर थ्योरम थी जो डिलीटेड थी, वो एक टेक्निक होती है। रिमाइंडर थ्योरम जो आपके कोर्स से डिलीटेड है, एक्चुअली इट इज अ टेक्निक। क्या होती है स्पेलिंग, TECH, एक मिनट, NIQUE टेक्निक ऑफ गेटिंग और फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। बट इट इज मतलब इसके कुछ वो होते हैं मेरिट डीमेरिट जो भी है। तो इसमें एक बस फायदा ये है कि हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी पड़ती, बट इसमें नुकसान ये है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डिवाइजर इज लीनियर, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट ओनली वर्क्स व्हेन द डिवाइजर इज लीनियर। अगर आपका डिवाइजर सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह क्वाड्रेटिक है तो ये आपको हेल्प नहीं करेगी, तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। और बेसिकली होता क्या है, हम ना इस डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मैंने x + 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू को लेके मैं डिविडेंड के पास गई, डिविडेंड के पास गई और मैंने कहा कि ला मैं तेरा रिमाइंडर निकाल देती हूँ, ये है मेरा डिविडेंड।
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह हमने -2 अप्लाई कर दिया। बस आ गया रिमाइंडर। तो एक तो रिमाइंडर निकालने का ये वाला तरीका है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन। अब देखना आंसर सेम आएगा। -2 इंटू -2 +4 +4 इंटू 8 +8 एंड 3 इंटू 2 -2 मतलब -6 प्लस 1 -6 9 -6 3 आया रिमाइंडर। यहाँ पे भी सेम आया। हाँ। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें लगाना चाहूं तो पहले मैं इसको जब इक्वल टू 0 रखूंगी तो मुझे एक्स ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। पहले इसके फैक्टराइज करूं, ठीक है, फैक्टराइज करूंगी 2 फैक्टर आ जाएंगे, 2 फैक्टर में अलग अलग वैल्यूज आएंगी, अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगी तो 2 रिमाइंडर आ जाएंगे। मतलब ये टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है। इस स्क्रीन पे आपके सामने 2 पोलिनोमियल की लॉन्ग डिवीजन मैंने शो करी है, एक्सप्लेन करी है, और ये बताया कि रिमाइंडर दोनों में 3 आ रहा है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से मैं सिर्फ इसका रिमाइंडर निकाल पा रही हूँ, सिर्फ इसका, जब हमारे पास डिवाइजर लीनियर है, डिग्री 1 है, सिर्फ इस केस में, ठीक है। यहाँ पे नहीं निकाल पा रही हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो अगर आपके एग्जाम में किसी के में आ जाता है तो वो ये लगा देगा, और नहीं आएगा तो वो नहीं लगाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलो रिमाइंडर आपका आ गया, चाहे रिमाइंडर थ्योरम से आया चाहे विदाउट रिमाइंडर थ्योरम से आया। अब मुझे ये बताओ, विल रिमाइंडर ऑलवेज बी 0? नो नो मैम। नो। मे बी 0, मे नॉट बी 0, मे बी 0, मे नॉट बी 0, क्वेश्चन मार्क। ट्रू। True. Now, if the remainder is 0 by remainder theorem or by long division, however, if the remainder is 0, then the divisor will called factor. If the remainder is 0, remainder अगर 0 हो जाता है तो आपके पास 2 बातें आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत। इफ रिमाइंडर इज 0 देन यू हैव 2 थिंग्स। नंबर वन क्या, जो आपका डिवाइजर है वो अब सिर्फ डिवाइजर नहीं है, दैट इज एक्चुअली फैक्टर। ये इक्वल टू लगाया मैंने, फैक्टर। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, जो आपका डिवाइजर है, जैसे यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 2 था, इसको आपने इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू -2 निकाल दी ना, ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, वट एवर वैल्यू, उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। This is something very, very important. When I have taught you this thing previously in the first term, even then I have focused, I have pressurized, I have re-explained this thing many times. Right now, I am doing the same. This is something, it is a relationship between everything because it is a chain. Everything is connected, like dividing, remainder, factor, 0, value, everything is connected. Everything is connected. Let me make a chain. इसको क्लियर कर दूं स्क्रीन को। यस मैम। एक चेन बनाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान समझना। देखो, एक तो ये चीज होती है और एक ये चीज। पूरी कहानी में 2 हीरो है, ठीक है, ये लीड रोल में काम कर रहे हैं। ये हमारा हीरो है, ये हमारी हीरोइन है, ठीक है, ये हमारा लीड रोल में काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले इसको उठाते हैं, इसको लगाते हैं इक्वल टू 0, ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, यहां से निकल जाती है x की वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, मतलब कोई भी एक नंबर आ चुका है यहाँ पर, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस नंबर को उठा के यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज a। सिर्फ सुहानी पढ़ रही है मेरे से, बस इंडिविजुअल क्लास चल रही है सुहानी की, और कोई नहीं पढ़ रहा इस टाइम पे। थोड़ा बहुत जिया भी पढ़ रही है, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा। लक्ष्य प्रियल, आप लोग को आंसर नहीं करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं, मुझे फीवर है। ओके माँ मुझे फीवर है, मेरी ओके तबीयत ओके ठीक नहीं है। ओके, आपकी वैक्सीनेशन हो गई प्रियल? नहीं मैम।
पहले फीवर करा लिया, अभी तो मुझे घर नहीं बुला रहे हो, अभी फीवर करा रहे हो, घर बुलाओगे तो क्या करोगे। अच्छा सुनो, एक बात ऐड कर दूं, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। आज मैं आपकी कॉलोनी में आ रही हूँ, ठीक है, अभी आ रही हूँ, तुम्हारी क्लास खत्म होते निकल जाऊंगी, ठीक है। आई एम कमिंग बिकॉज आरुषि की मम्मा ने बोला है आज आओ, आज से आओ, ठीक है। सो वो अभी अकेले पढ़ रही है, अभी कुछ आगरा भी नहीं पढ़ रहा, अभी वो अकेले पढ़ रही है, तो मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। तो आपका जब मन मन करे आप मुझे बता देना, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। चलो, वैल्यू हो गई वैल्यू। अब ये जो हाँ। वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, इसी वैल्यू को भी रिमाइंडर बोलते हैं, इसी वैल्यू को ही रिमाइंडर बोलते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा था ना कि पी ऑफ ए रिमाइंडर था, जब मैंने कहा था कि आप ऐसे ऐसे करके ऐसे डिवाइड करते हो और आपके पास यहाँ पे एक रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दे, तो ये भी हमारा रिमाइंडर होता है। तो जो वैल्यू है वही रिमाइंडर है, जो वैल्यू है वही रिमाइंडर है, तो ये वैल्यू भी है, ये रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर ऑफ p of x being divided by x minus a, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब ये जो p of a है, जो वैल्यू भी है, जो रिमाइंडर भी है, ठीक है, दिस मे बी जीरो, जीरो सॉरी, वैल्यू और रिमाइंडर कुछ भी बोल सकते हैं, दिस मे बी जीरो, यहाँ पर जीरो का मतलब ये है, ठीक है, इसको काट देते हैं, और मे नॉट बी जीरो, क्योंकि वैल्यू या रिमाइंडर जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर वैल्यू या रिमाइंडर जीरो हुआ तो हम दो बातें बोलेंगे। नंबर वन, मैंने जो लास्ट स्लाइड में भी लिखी थी, नंबर वन, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और दूसरी बात x इज इक्वल टू a is the zero of p of x, ओके। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तब भी हम दो ही बातें बोलेंगे, x माइनस ए इज नॉट द फैक्टर। अब रिमाइंडर आप कैसे भी निकाल लो, चाहे वैल्यू से निकाल लो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकाल, तुम्हारी मर्जी है। आप रिमाइंडर को लॉन्ग डिवीजन से निकालो या रिमाइंडर थ्योरम से निकालो। अगर रिमाइंडर जीरो आया, अगर वैल्यू जीरो आई तो x माइनस ए या फिर जो भी डिवाइजर है, दैट विल बी फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और वो डिवाइजर हमेशा लीनियर होता है नाइन्थ के अंदर, क्योंकि नाइन्थ में वी आर स्ट्रिक्टली बाउंडेड कि हमारा डिवाइजर लीनियर ही होगा। और जो डिवाइजर है उसको अगर आप इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो तो x की जो वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, दैट विल बी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और अगर हमारा वैल्यू रिमाइंडर जीरो नहीं आती है तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू a इज नॉट द जीरो ऑफ p ऑफ x। प्रियल एंड लक्ष्या, आप लोगों ने कल की क्लास में जो इसका इंट्रो पढ़ा था मुझसे, यू टू वर देयर इन यस्टरडेज क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 और 2 की थी, उसको करने के बाद यहाँ से आप जो कर रहे हो आपका बिल्कुल कनेक्ट बैठ रहा होगा, क्योंकि 1 2 में हमने इतना ही किया था, वैल्यू क्या होती है और जीरो क्या होती है ना। और अब मैं जो करा रही हूँ वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप कुछ भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो कि एक पॉलिनोमियल है, एक आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर आप कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर निकालते हैं, या फिर हम x इज इक्वल टू a पुट करके वैल्यू या फिर रिमाइंडर निकालते हैं। दैट रिमाइंडर और वैल्यू मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। इफ द रिमाइंडर इज जीरो देन द गिवन डिवाइजर इज द फैक्टर एंड x इज इक्वल टू a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? कुछ भी लॉन्ग डिवीजन में, इस कंसेप्ट में, एनीथिंग?
नहीं, ये फैक्टर थ्योरम है ना, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px एक्चुअली और पता है x क्या, इज सब इक्वल कुछ टू कनेक्ट है बेटा सुहानी। देख, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि ये फैक्टर होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। अब फैक्टर थ्योरम कहे ना कहे वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, भाई रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर तो होना ही पड़ेगा ना। अब फैक्टर थ्योरम बोल दो। हम बात बताओ, जो जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1 फैक्टराइज करना है, तो इसका फैक्टर क्या -1 लेंगे ना? स्प्लिटिंग में टर्म होगा बेटा, 12 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई करके अच्छा 12 आना चाहिए, ऐड करके 7 आना चाहिए। तो क्या होंगे ठीक फैक्टर्स है ठीक बताओ? है। ऐड करके 7, 4 एंड 3, 4 एंड 3। हाँ ठीक है, स्प्लिटिंग करेंगे। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज, तो हम बाद में करते हैं, पहले वर्कशीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो फिर अब आप धीरे धीरे करके मुझे डाउट बोलते जाओ। अभी मीटिंग ओवर हो रही है, रीज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके। ओके जी।